Shri Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanani Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 42 of the Balakandam, which has 25 verses. Continuing with the story of Sagara, Anshuman and his grandson Bhagiratha successively practice austerities for bringing down the Ganga to the terrestrial plane. Brahma grants a boon to Bhagiratha and exhorts him to propitiate Lord Shiva and secure his consent to receive the Ganga on his head. आज हम बालकांड के द्विचत्वारिंशः सर्गा अर्थात 42वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें अंशुमान और भगीरथ की तपस्या, ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देने का विवरण दिया गया है। इसमें 25 श्लोक हैं। काल धर्मम गते राम सगरे प्रकृति जनाः राजानम रोचयामा सुरंशु मंतम सुधार्मिकम। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। Sagara, having met his end, which is the law of time according to which one who is born must die sooner or later when one has played out one's allotted role, O Rama, the people desired the highly pious Anshuman to be their ruler. स राजा सुमहानासीद दंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुतः। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। The said Anshuman, or scion of Raghuvamsha, proved to be a great monarch. His son, widely known by the name of Dilip, was also equally great. तस्मै राज्यम समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। Having ensured the kingship to the said Dilipa, or scion of Raghuvamsha, Anshuman practiced the severest form of ascesis for bringing down the Ganga to the terrestrial plane on a delightful summit of the Himalayas. द्वात्रिंशच्छत् सहस्त्रं वर्षाणि सुमहायशाः तपोवनगतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधनः। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। Having continued for 32,000 years in a grove intended for austerities alone, the highly illustrious king, rich in asceticism, eventually attained heaven only and did not get the desired grace of the holy Ganga. दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैता महं वधं दुखोपहयता बुद्धया निश्चयं नाद्य गच्छत। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। Hearing of the unnatural death of his grand uncles, the exceptionally glorious Dilip could not arrive at any decision regarding the method of bringing Ganga down to the terrestrial plane due to his judgment having been clouded by sorrow.
कथम गंगावतरणम कथम तेषाम जलक्रिया तार्येयम कथम चैनतानीति चिंता परो अभवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा। He felt anxious कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। He felt anxious as to how the Ganga should be made to descend to the terrestrial plane, how water could be offered to them, and how he should be able to redeem their departed souls. तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भागीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। While the king, who was celebrated for his righteousness, was thus plunged in the thought every moment, a most pious son by the name of Bhagirath was born to him. दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेर बहुभिरीष्टवान् त्रिंशद्वर्ष सहस्त्राणि राजा राज्यम कार्यत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। Dilip, for his part, who was exceptionally glorious, propitiated the Lord through many sacrifices and ruled for 30,000 years. अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल काल धर्म मुपेयिवान। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को ना पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। Failing to arrive at any decision on the question of deliverance of his forebearers, the king, O tiger among men, met his end, which is the law of time, through illness. इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितनेव कर्मणा राज्ये भगीरथम पुत्रम विशिच्य नरर्षभः। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। Having installed his son Bhagirath on the throne, the king, who was a jewel among men, ascended to paradise, the realm of Indra, because of his merit earned by his own will. भगीरथस्तु राज्यर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराजः प्रजा कामः स च प्रजाः। मंत्रिष्वाधाय तद राज्यम गंगावतरणे रतः तपो दीर्घम समातिष्ठद गोकर्णे रघुनंदन। रघुनंदन धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। Emperor Bhagiratha, a pious royal sage, was issueless and as such desirous of a progeny, Ocean of Raghuvamsha, having entrusted the people as well as their rulership to his ministers, intent as he was on the descent of the Ganga to the terrestrial plane, he practiced long asceticism on Mount Gokarna, a summit of the Himalayas. ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मांसाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षस् सहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ततः सुरगणैः साधुर्मुपागम्य पितामह भागीरथम महात्मानं तप्यमान मथा ब्रवीत। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर
तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। With uplifted arms and senses fully controlled, he exposed himself to 5 fires, placing himself in the midst of 4 fires, one in each quarter of the fifth in the shape of the sun overhead, and partook of food only once a month. 1,000 years elapsed even as he remained engaged in severe asceticism. O mighty armed one, the Almighty Brahma, the creator and Lord and ruler of all created things, got much pleased with this high souled king. Calling with hosts of gods on high souled Bhagiratha, who had been practicing austerities, Brahma, the progenitor of the entire creation, thereupon forthwith spoke to Bhagiratha as follows. भगीरथ महाराज प्रीतस्ते हम जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरम वरय सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। I am pleased with the ascesis duly practiced by you, O great king, the ruler of people. Therefore, ask of me a boon of your choice, O king with of noble vows. तमोवाच महातेजाः सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहु कृतांजलिपुटः स्थिता। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। Standing with folded hands, the exceptionally glorious and mighty armed Bhagiratha submitted as follows to Brahma, the progenitor of all the worlds. यदि में भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम सगरस्यात्मजाः सर्वे मतः सलिलमाप्नुयुः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। If the Lord is pleased with me, and if there is any reward for asceticism, let all the sons of Sagara receive water from me. गंगायाः सलिल क्लिनै भस्मनेषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्व च प्रपितामहा। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। When the ashes of these princes of gigantic body get soaked with the waters of the Ganga, all my aforesaid granduncles will bid fair to attain the everlasting heaven. देवयाचेह संतत्यै नावसीदेत कुलं च नः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष में अस्तु वरः परः। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। Born in the line of Ikshvaku, O glorious one, I ask for a male progeny so that our race may not go extinct. Let this be treated as another boon, O Lord. उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोक पितामहः प्रत्युवाच शुभाम वाणीं मधुराम मधुराक्षराम। राजा भागीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथ। Brahma, the progenitor of all the worlds, thereupon answered the king, who had uttered the aforesaid prayer in the following benign and agreeable speech for sweet expressions. मनोरथो महानेश भागीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुल वर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। Great is this ambition of yours, O Bhagirath, a great chariot warrior as you are. May it be realized. May success attend on you, O promoter of the Ikshvaku race. इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता
ताम वे धारयुतम राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती, गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। Here is the river Ganga, the elder daughter of Himavan, the deity who is presiding over the Himalayas, which emanates from the Himalayas. Let Lord Shiva alone be invoked to support the Ganga when it descends on earth, O king. गंगायाः पतनं राजन पृथ्वी न सहिष्यते ताम वे धारयितुं राजन नान्यम पश्यामि शूलिनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। The earth, O monarch, will not be able to sustain the velocity of the descent of the Ganga, and I do not perceive, O king, anyone other than Lord Shiva, the wielder of the trident, capable of sustaining it. तमेव मुक्त्वा राजानं गंगाम चाभाष्य लोककृत जगाम त्रिदिवम दैवैः सर्वैः सह मरुद्रणैः। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्रणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। Having thus spoken to the aforesaid king and instructed Ganga as well as to oblige Bhagiratha when the time comes, Brahma, the maker of the universe, rose to Brahmalok with all the gods, including the 49 wind gods. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 42 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tat Tulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद।